So last time we've done frequency polygon. Okay, or frequency polygon, uh, your bar chart and histogram. Correct है ना? So frequency Yes. polygon में क्या होता है? Frequency polygon, when we do a bar chart, for example, right? The bar chart will be like this, right? This will be fourthly for the disconnecting. This is the weight should be equal in all bar chart, right? The height will represent the data frequency. Correct? Now, when you have a group data, okay, you can have this 10, 20, 30, 40, 50 like this, right? So 10 to 20 something, or this is a discontinuous data. So here you have A, B, C, and this is nothing related to continuity of the data. एक मिनट, एक सेकंड. ठीक है. तो your bar chart will be of certain this format, right? Sorry, bar chart will be of the format जहाँ पे तुम्हारे पास you have vertical bars with the different heights and it is a discrete data, right? It is a discrete data. Space between this thing is equal, right? So यहाँ पे A, B, C, D कुछ भी है, मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, ये सारी चीजें आ सकती है, राइट? क्लियर है? सो ये तुम्हारा हाइट ये दिखा देगा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, राइट? उसकी व्हाट इज द डेटा इनपुट. जब तुम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाओगे तो उसमें क्या होता है, जो डेटा होता है उसकी मिड वैल्यू पे, जैसे ग्रुप डेटा अगर हुआ, राइट? वी हैव डन ग्रुप डेटा, सो इट इज फ्रॉम 50 to 55, 55 to 60, 65 to 70, 75 to 80. This is what you can, and this point
which is taken a middle point. अभी देखोगे तुम लोग यहाँ पे मिडल पॉइंट पे ये मार्क आएगा, राइट? सो फ्रीक्वेंसी दिस मिडल पॉइंट, ये मिडल पॉइंट के जो ज्वाइन करेगा इट विल कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, करेक्ट? ये जो पॉलीगॉन बनता है इट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. क्लियर? So whenever you want to take, similarly, because why I am telling you all this three differently, because इसके ऊपर ही S curve बनेगा. Okay, it will be only the cumulative frequency graph will be made only on this. Similar kind of data it will be made, right? Now if you see here, तो frequency polygon data में तुम्हारे यहाँ पे जैसे बनता है, तो this is how you got 50 to 60, 50 to 55, उसकी frequency 1 है. Then 55 to 60 उसकी frequency ये है 6 है. फिर 50 60 to 65 उसका 16 है. फिर ये है, फिर ये. इफ यू टेक द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे आएगा, एक पॉइंट इसके सेंटर में आएगा, इसके एक सेंटर में आएगा, इसके सेंटर में आएगा, एंड वन विल बी ऑफ दिस सेंटर, राइट? एंड व्हेन यू जॉइन ऑल दिस विल बिकम अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. नाउ व्हाट इज, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द एस कर्व? एस कर्व क्या होता है? इट इज बेसिकली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, सीएफजी बोलते हैं उसको. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है? व्हेन वी से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रेटर देन और इक्वल टू, और सॉरी लेस देन और इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू ग्राफ, करेक्ट? नाउ व्हाट डज इट मीन? वो बताता है कितने जन के 55 सेंटीमीटर और लेस हाइट है. हाउ मेनी ऑफ यू हैव, हाउ मेनी ऑफ देम हैव 55 सॉरी 60 एंड लेस? तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा. आई विल टेल यू व्हाट, दिस इज 1, दिस इज 7. फिर हाउ मेनी ऑफ देम हैव लेस देन 65 हाइट? तो 16 प्लस 7 23, तो यहाँ पे आएगा समथिंग अराउंड 23. Something is this plus 12. 23 plus 8, 35. We are 35. And this is something of 4. So this will be 39. Okay. So graph will go like this. Only difference is that this will be at the end of the bigger value, on the verge of the bigger value. So because this is less than or equal to, so this one person will have a height less than or equal to 55. This is one, 7 people will have a height less than 60 or less. So even in this get 55 also आ जाएगा, 50 भी आ जाएगा, and 60 भी आ जाएगा. Here when you take the 16, when you add, so how it becomes is, this graph become 1, this is become 1 plus 7, sorry, this will be 1 plus 6, this will be 7 plus 16, this will be 23, ऊपर जाएगा, ऊपर 23 plus 12, and this will be 35 plus 4. This is how it will become, right? This is cumulative, is basically keep on accumulating it, right? एक एक करके हमेशा ऐड करते जाएगा, right? ठीक है, चलो. So it is not necessary to draw a bar chart. If required, only the frequency. Now bar chart is not required, right? This diagram shows the frequency of the frequency polygon. The exam result 34 showed in the two subjects, math and French, right? दोनों subject में उसने ये बनाया, right? तो यहाँ पे क्या समझ में आएगा? 6 people have scored between 0 to 10. Now this is taken an average, right? This is taken an average. तो यहाँ पे only one person has taken this. यहाँ पे जब बोला 10 to 20 में there are 9 student, there are 20 to 30 में there are 16 student, there are 30 to 40 के अंदर ये आया, there is this 40, this is French में. So what do you think? तुमको क्या लगता है कि विदाउट रीडिंग दिस यहाँ पे क्या दिया है? वी डोंट हैव टू रीड दिस. व्हाट डू यू थिंक, व्हाट एग्जैक्टली इट रिप्रेजेंट्स? इससे देख के तुमको क्या समझ में आएगा? बाय लुकिंग एट दिस फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, व्हाट डू यू थिंक कि क्या आ रहा है? ये मैथ्स में कम स्कोर्स आ रहे हैं कंपेयर टू फ्रेंच. मैथ में ये पूरे स्टूडेंट का डब्बा गुल है, करेक्ट है ना? ठीक है ना? सो मैक्सिमम लोग यहाँ पे फेल हो रहे हैं मैथ्स में, ठीक है ना? तो इफ यू सी दिस एट दिस पॉइंट, यहाँ पे एक पासिंग है, दो और एक, खाली 3 जन पास हुआ है. इफ आई टेक 35 द पासिंग मार्क, राइट? इवन इफ आई टेक 40 द पासिंग मार्क, खाली एक ही बंदा पास हुआ है, 33 फेल हो गए. यहाँ पे कितना हुआ फेल? दिस इज वेयर द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विल हेल्प यू, राइट? इफ आई से 40 इज द पासिंग मार्क, इफ आई टेक 40 द पासिंग मार्क यहाँ पे, Yeah.
दिस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विल हेल्प यू, क्योंकि यहाँ पे एक ही बंदा होगा जो पास हुआ है। लेकिन इफ आई टेक दिस थिंग, तो यहाँ पे 1, फिर 2, 3 हो गया, 3 और 4, 7, 7 और अगेन 4, 11, 11 और दिस थिंग, यहाँ पे कोई है क्या? 40 पे कोई है? नहीं है। 11, तो 11 लोग फेल हो गए, बाकी के ऑल पास हो गए, राइट? करेक्ट है। So what I'm calculating right now, you don't have to calculate in cumulative frequency graph. Cumulative frequency graph अपने आप calculate करके दे देगा. So let's see. Two main differences are apparent. Score obtained by the maths exam were significantly lower than the मेरा friends of पूरा school. अंदर, Sorry, सॉरी सॉरी। ठीक है. The score obtained by in maths is significantly lower than most of the students. The scores in the French exam were more spread आउट ऑफ द मैथ स्कोर, बिकॉज मैथ्स बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है, सबके 40 में तो सबका 40-45 में तो डंडा गुल हो गया, राइट? एंड दिस इज फ्रॉम इवन 5 मार्क टू 95 मार्क, स्प्रेड है पूरा, राइट? सब जगह पे स्टूडेंट, किसी का हाईएस्ट भी आया तो किसी का कम से कम भी आया, राइट? Yeah. More than the score, the French scores were distributed fairly evenly over the range of 0 to 100%, where the math score is mostly between 0 to 40. Correct है ना? This is what we observed, right? बस ये सारी तुमको यहाँ पे करना है। अब यहाँ पे जो दिया है ना, व्हाट इज गिवन ऑलरेडी हियर, राइट? ये बहुत इजी है, ठीक है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। दिस यू कैन सॉल्व इट इन अ क्लास ऑल्सो, ठीक है? ये बहुत सारी चीजें हम क्लास में भी सॉल्व करेंगे, ठीक है? दिस इज नो रिक्वायर टू बी डन। हिस्टोग्राम, अब ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो हिस्टोग्राम या फिर उसके भी फ्रीक्वेंसी कर्व है, ये तुम्हारे बहुत ज्यादा आता है एग्जाम में, ठीक है? एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल, राइट? तो यहाँ पे क्या करना है, इसका ऑब्जर्वेशन क्या करना है, इज वेरी वेरी रेयरली है इसका, इट इज मोर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन है बहुत, ठीक है? यू शुड नो हाउ इट हैपेंस, राइट? बट यहाँ पे हिस्टोग्राम है, फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ दिस हिस्टोग्राम में दो तरीके के हिस्टोग्राम होता है। एक होता है कि इवनली डिस्ट्रीब्यूटिंग, इवन गैप्स, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इट इज एग्जैक्टली लाइक बार चार्ट, इसमें कोई फर्क नहीं है, एग्जैक्टली सेम एज बार चार्ट। ओनली डिफरेंस इज दैट हिस्टोग्राम इज स्टिक टू ईच अदर, राइट? बिकॉज ये कंटिन्यूस डेटा के लिए होता है, इट इज फॉर कंटिन्यूस कंटिन्यूस डेटा के लिए होगा, राइट? तो ये बार चार्ट ना तुम्हारा हमेशा ऐसा दिखेगा, इट विल लुक लाइक दिस, दिस इज हाउ हिस्टोग्राम विल लुक लाइक, राइट? यू कैन ड्रॉ बार चार्ट ऑल्सो लाइक दिस, उसमें कोई फर्क नहीं, गैप नहीं रखोगे तो बार चार्ट भी ऐसा दिखेगा। बट बार चार्ट में यूजुअली दे हैव अ गैप, राइट? Usually they have a gap. 1 minute, just give me a minute. Yeah. Now, histograms resemble the bar charts but are not confused with them, right? In a bar chart, the frequency is shown on the height of the bar of each chart. This is what I told you. Histogram frequency data shown in the area of each bar. Now, this is what how it will have area of each bar. How it is given? Because the frequencies, the gap are different. If the gap are same, there is no difference. It is also shown as this. Histograms are often have a bar varying width, right? Yeah, this is what I said, right? Often have the varying width, matching the width of the class interval, the whose data are representing, right? Now, why they take a area? Because, for example, if I take, for example, I'll draw a bar chart, or I'll just show something like say the 0, 10, 20, 30, 40. Correct? I draw a histogram only, right? So I have, I'll say 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40. Okay, you tell me number of students who scored this many mark. Tell me. कुछ भी बताओ यहाँ पे. Tell me whatever number you like it.
4, 8, 6, 15. Okay. Yeah. ठीक है. So now we have how many total? 18 plus इसमें यहाँ पे I'll just take Sir, हाँ I can't बोलो. hear you that well. Sorry, I can't hear you that what well. happened? I don't know. Now you can hear me. What? Can you hear me now? No, yeah, I can hear you. Yeah. मेरा तेरा आवाज तो क्लियर आ रहा है बेटा. चेक योर स्पीकर. चेक योर स्पीकर सेटिंग्स. Oh, wait, the output volume was okay. ठीक है. Sorry. Yeah, so what were you saying? I didn't hear you तो before. आई सेड के फ्रॉम 0 to 10 marks, this is marks, right? So there are 4 students, there is a frequency. So there are 4 students who score 0 to 10, 20 student, sorry, 8 students who score, 3 students who score 20 to 30, and 15 students score 30 to 40, right? So if I draw this bar chart, how it will look like, right? It will look like this. Assume this is a equal length, huh? Okay, assume this is a equal length. This is how typically it will look like, right? This is 4, this is 8, this is 3, and this is 50. Correct, Anna? Clear? Yeah. Okay. Now, what will happen if I merge this both 0 to 20? तो क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा, right? Yeah. So this has to be equally width. ये तो distance आपको equal रखना पड़ेगा. Correct है? Any doubt in this? नहीं ना? 12. ये तो तुमको ऐसे नहीं था ना, 0 to 20 करो, फिर 30 करो, फिर 35 करो, फिर 45 करो, फिर 85 करो. ऐसा नहीं लिख सकते, right? This has to Yeah. be equally distributed, right? So if I do this, what will happen? The 12 frequency will go up till here. So can I use the bathroom, please? बेटा ये इंपॉर्टेंट चीज देख रहा हूँ, 2 सेकंड के बाद जा. Okay. ठीक है. Now if you see this is the extra width, right? This is, first of all, it is very high. This is also gone up. This is also gone up, right? Yeah. So which is wrong? Correct? Yes or no? So what you Yeah. need to check? You need to check this area. What area you are getting here? The same area should be for this, right? अब जाके आ जा. मैं बताता हूँ कैसे करने का. Correct? Okay. You got it? So when you increase the width, what will happen? The frequency, the width we increase, the number of student also will increase, which is falling in that criteria, right? कौन गया? ले. So my network is lagging a bit. Can I keep my camera off? हाँ, no problem बेटा, no problem. Correct. So when you increase the Shreya, can you hear me? Yeah. So when you increase the width, correct? When you increase the width, correct? Hmm. Okay. And obviously the number of students will also increase in that. Yeah. Correct है? Yeah. Yes or no? Yeah. So then if you increase the bar, directly bar, 12, this is not good. That is wrong indication, right? Hmm. Because here you are observing it in 20 marks, here 10 marks, and here 10 marks. Correct, Anna? Yeah. Correct. For example, if I take a data, so this is wrong, you have to take an area. That is why they take bar represent the So, but frequency. it won't be wrong. It will just be not It will wrong, na, defined. beta? Because from this, bar will represent the wrong information, right? The width is more and the height is also more. Correct, Anna? Yes or no?
Yeah, but it's saying बताता हूँ क्या होगा. 0 This will give till you wrong 20 impression. ना This will give you wrong give the impression. students who are between 0 and 20. हाँ, correct. That will show you. But then number of frequency does not matter. Yeah, There but you have to it take a. won't be necessarily wrong. No, it is wrong. If data representation, it has to be evenly distributed, right? It is necessarily wrong. Yeah. It is necessarily wrong because it represents. See, when you have this bigger wire and then you have a smaller one, okay. So what will happen? This shows the both are same frequency. It is not there, right? Oh, wait, I thought you added the 20 to the 20 and 40 as well. हाँ, मुझे नहीं. लगा आप 0 से 20 एक बार कर रहे हो, 20 से हाँ, 0 40 से एक 20, बार दैट कर इज रहे व्हाट हो. एक्चुअली आई एम डूइंग. 0 to 20 एक बार करूंगा तो Yeah. यहाँ पे बढ़ जाएगा ना ये. करेक्ट. So the bar cannot increase, right? Because the width is increasing. So that is why they take it area. And It is called a then frequency density. the other part Your voice is will breaking, be beta. Hello. 20 Your voice to is 40, breaking. right? Shreya. Shreya, your voice is breaking. Tell me again. Hello. पर आप 20 to 40 भी ले रहे हो ना. नहीं. 20 to 40 नहीं. 20 to 30, 30 to 40. I'll show you. हेलो. Which 20 to 30, 30 to 40. There's different frequency I'm taking, right? तो Your voice is breaking a मुझे lot. लगा 20 to 40 भी इंक्रीज नहीं नहीं नहीं, 20 to 40 नहीं. 20 to 40 तो फिर सेम वेट्स हो गया ना बेटा. इफ आई कर. टेक 0 to 20, 20 to 40 तो सेम वेट्स हो गया, राइट? नो मीनिंग. फ्रीक्वेंसी जब ये डिफरेंस होता है वेट तब ये आता है प्रॉब्लम, राइट? ठीक है. हिस्टोग्राम ऑफन हैव अ बार ऑफ वेरिंग वेट्स मैचिंग द वेट्स क्लासेस इंटरवल whose data are representing. नहीं चल रहा Because of the प्रॉपर. area bar represent the frequency, the height of the bar depends on the width. Correct? That is what I'm saying. Height of the bar will depend. Suppose I've हेलो. taken. Hello. कैन यू हियर मी नाउ? Yeah, I can hear you now. अभी जो विड्थ होगा, जब तुम ये मर्ज कर दोगे ना इसको, व्हेन यू मर्ज दिस व्हाट विल हैपन? दिस विल कम टू लोअर वन. यहाँ नीचे आ जाएगा. दिस विल बी when you merge the width, this will be how it will look like, right? I'll show you. Unlike a bar chart, the vertical axis is not labeled as a frequency but frequency density. For example, suppose if I'll just give you an example, right? ये दो एरिया है. Suppose this is two area, right? Of some A city and B city, correct? They have the same area, correct? But if I say in this there are 2 million people staying and here 3 million people staying, correct? तो वेर इज द मोर फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कहाँ पर ज्यादा है और कितना है? सपोज एरिया इससे 100. आई जस्ट से 100 स्क्वायर किलोमीटर. ऐसा है तो क्या आएगा? दिस विल बी 3 million अपॉन 100 किलोमीटर स्क्वायर. और यहाँ पे आएगा 2 million पर किलोमीटर स्क्वायर, राइट? डिवाइड बाय 100. So it is what says 0.02 million per kilometer square is a 0.03 million per kilometer square, right? This is my frequency density है मेरा. Population density है, correct? So when I say कि which one is the more populated, A or B? Which one is more populated, A or B? Dhruv, can you hear Yes, me? sir. Yes, sir. Which one is more populated, A or B? So B. B, correct? Because the same area, the population is more. Shreya, can you hear me? Yeah. Okay, ठीक है. But I'll change now. I change. ठीक है. I'll take this area. I have this area, right? This is say 100 square kilometer and this is say 300 square kilometer. Here you have 3 million. Here you have 15 million. Now which is more populated, more dense? और density कहाँ पे ज़्यादा है? Uh, Um, कहाँ पे है? so won't it be the first one? हाँ, 3 million and 15 million. This is 100 square kilometer. This is 300 square kilometer. So won't it be the first one? हाँ,
Won't it be the first one? This is A, this is B. I don't know. Won't it? मेरे को थोड़ी मालूम है. Which is more dense, where you have more people per square kilometer. मैंने बहुत सिंपल रखा है. This will be 0.03 and this will be 0.05. करेक्ट है? This will be more dense because you have 0.05 million people per square kilometer and here you have 0.03 people per square kilometer, right? You know Canada, Yeah. you know India, Yeah. which is more populated, more dense population. India. Very good. चलो forget about India and China and Australia and Canada. ठीक है, let's check. You know Mumbai, Mm, okay, and you know Silvassa, है? yeah. ठीक है, which is more dense population. Mumbai. करेक्ट, क्योंकि मुंबई में एक जगह ठाक ठाक इधर जाओ तो आदमी लगता है. ठीक है, ट्रैफिक बैक टू बैक ट्रैफिक होता है, गाड़ी एक दूसरे को चिपक के चलता है. ठीक है, सिलवासा में आराम से चल सकते हो, राइट? दिस इज Mm, समथिंग बिकॉज इट इज मोर डेंस. यहाँ पे जितना एरिया है उसकी कंपेरेटिवली देयर आर लॉट ऑफ पॉपुलेशन इज देयर, राइट? एंड दैट इज व्हाई यू टेक अ फ्रीक्वेंसी डेंसिटी. Frequency density will tell you in how much area, how much data is there, right? So when you this frequency density will give you area of this, the height will decided on the area of the bar. Width and length both will be considered, right? And that is the right way to represent the data, correct? So frequency density there. Now frequency density or frequency divided by the class width, right? जितना classes होगा उससे divide कर देगा तो वहां पे आ जाएगा. For example, we had this 4 and 10. 0 to 10 में 4 था, 10 to 20 में 8 था, राइट? सो इसका क्या होगा, हाइट कितना आ गया, इसको फ्रीक्वेंसी डेंसिटी से कैलकुलेट करेगा तो क्या आएगा 0.4, इसको कैलकुलेट करेगा 0.8, करेक्ट है ना? बट इसका एवरेज लूंगा तो अभी में क्या होगा, 0 to 20 में 12 आ गया, राइट? सो इसका फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या आएगा, 12 डिवाइड बाई 20 विच इज 0.6, और इसका एवरेज निकालेगा तो भी 0.6 आएगा, करेक्ट है? yeah. समझ में आया? सो बिकॉज दिस इज इवनली विड्थ यहाँ पे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता. दिस इज समथिंग यू विल हैव 0 to 20, 20 to 30, 30 to 45, 45 to से 80, 80 to 90 एंड 90 to 100, ऐसा भी हो सकता है, करेक्ट? तो हियर ये फ्रीक्वेंसी विड्थ, इसमें विड्थ कितना है, 10 20 का है, इसमें 10 का है, इसमें 15 का है, इसमें 45 से 35 का है, इसमें 10 का है, इसमें 10 का है, करेक्ट है ना? इज इट क्लियर? Yeah. ठीक है, तो इसमें 10 10, तो जब भी फ्रीक्वेंसी जो भी होगा यहाँ पे 8 9 7 16 25 36 जो भी आएगा, राइट? सो दिस इज डिवाइड बाय दिस, सो 8 डिवाइड बाय 20, 9 डिवाइड बाय 10, 7 डिवाइड बाय 15, 16 डिवाइड बाय 35, 25 डिवाइड बाय 10 और 36 डिवाइड बाय 10. ये तुम्हारा फ्रीक्वेंसी डेंसिटी हो गया. इसके हिसाब से तुम्हारा हाइट बनेगा. समझ में आया? On the right vertical axis, it will be frequency density, not the frequency will be plotted. Correct? समझ में आया? Yeah. Very good. चलो, let's see the example. Okay. Draw the histogram on the table showing the distribution ages of passenger traveling the flight, something something, and not in the collected in the class interval, right? 0 to 20 में frequency दिया, 20 to 40 में ये करेक्ट है, 20 का width है यहाँ पे. So I'm taking this is 20, ये 20, width I'm taking this is 10, this is again 20, this is 30. हो गया? अब तुमको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कैलकुलेट करेगा, तो यहाँ पे क्या है, 20 डिवाइड बाई 20 कितना आएगा, 1.4, 36 डिवाइड बाई 1.8, 20 डिवाइड बाई इधर 2, here 30 डिवाइड बाई 20 1.5, 18 डिवाइड बाई 30 इज क्या होगा, 0.6, राइट? क्लियर? Yeah. तो अभी ये प्लॉट होगा तुम्हारा, विल नॉट प्लॉट दिस, करेक्ट? फ्रीक्वेंसी नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी प्लॉट होगा. देखो आ गया, मैच हो रहा है सब कुछ, Yeah. करेक्ट? बस अभी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी तुम यहाँ पे प्लॉट कर दो. इसे क्या कहते हैं, राइट साइड में फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आएगा. अब विड्थ विल चेंज, सी हियर द बार विड्थ विल बी डिफरेंट बिकॉज यहाँ पे ये 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, यू कैनॉट चेंज दिस विड्थ, इट हैज टू बी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट?
जितना डिफरेंस है उतना ही तुमको रखना पड़ेगा, बट ऑब्जर्वेशन आर डिफरेंट, दैट इज वाई द बीट्स विल बी डिफरेंट एंड हाइट विल बी अकॉर्डिंग टू द डेटा. Remember that distance data can only take the certain values, but the continuous data can take the any value within the, है ना. इसके लिए डिस्क्रीट डेटा तो कोई भी ले सकता है, राइट. मंडे, वेनेसडे, फ्राइडे, थर्सडे, ट्यूसडे, कुछ भी अलग ले सकता है. डिस्क्रीट डेटा के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन कंटिन्यूस डेटा के लिए रेंज इंपॉर्टेंट है. More often than not, discrete data are related to things that you count. And यहाँ पे continuous data is things that you measure, right? मेजर होते हैं कैसे, रुपी. रुपी को मेजर कर सकते, काउंट कर सकते हो. और Count. करेंसी काउंट कर सकते हो, राइट. Yeah. ठीक है. नंबर्स काउंट Count. कर सकते हो. पॉपुलेशन काउंट कर सकते हो, राइट. कंटिन्यूस या तो एक बच्चा है, नहीं है, एक, देर 1% और नॉट दैट, राइट. इट कैन हैव 2.3%, राइट. किसी घर Yeah. पे है क्या 2.3%? Right. 5.9% कोई किसके घर पे है क्या? नहीं है, राइट. इट इज ऑल यू कैन काउंट एंड समथिंग व्हाट यू कैन मेजर. मेजर क्या क्या कर सकते हो? लेंथ, हाइट, विड्थ, Yeah. ओके, योर वेट, मास, कैपेसिटी. दिस ऑल यू कैन मेजर, राइट. इट इज अ कंटिन्यूस नेचर. टाइम, राइट. टाइम यू कैन नॉट काउंट, टाइम इट मेजर, राइट. कितना टाइम लगा, 5 घंटा लगा, 2 घंटा लगा, 3 सेकंड लगा. इफ यू सी इज अ रेस होता है ना, तो क्या होता है, मिली सेकंड के अंदर लोग काउंट होते हैं, राइट. मिली सेकंड के अंदर मेजरमेंट करता है, राइट. सो व्हेन यू से लॉन्ग जंप और हाइट, सो ये जब होता है तब तुम उसको मेजर करते हो, राइट. इफ यू सी द टेप, एवरीबडी इज पुटिंग द टेप, राइट, कि कितना जंप हुआ है. सो थिंग्स, कंटिन्यू डेटा इज ऑलवेज मेजर्ड, ओके, एंड डिस्क्रीट डेटा इज ऑलवेज काउंटेड. डिस्क्रीट मतलब क्या होता है, इट इज नॉट कंटिन्यूटी इन बिटवीन, राइट. बस 13.3 हो गया, दैट्स इट. ठीक है, चेक करो, ये इंपॉर्टेंट है. आई वॉन्ट यू टू डू दिस ऑल क्वेश्चंस वेरी, मतलब इसके लिए ग्राफ लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अपना ये करो, ये ऑल्टरनेट करो. ठीक है, ऑड एंड इवन हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. यू डोंट डू राइट नाउ, जितना पेंडिंग का पेंडिंग है वो खत्म करो, राइट. अब स्कैटर ग्राफ मैंने ऑलरेडी ले लिया है. देयर इज अ स्कैटर ग्राफ में क्या होता है कि देयर इज अ डायरेक्शन, राइट. नाउ इट इज Yeah. अ नेगेटिव बायस, जो यहाँ पे है ना, क्वांटिटी सोल्ड, द नंबर ऑफ पीसेस ऑफ पैड्स, राइट. नाउ क्वालिटी सोल्ड, तो जितनी ये है, तो इट इज नेगेटिव वेरिएशन, राइट. इट इज नेगेटिव डायरेक्शन. ठीक है. नाउ को रिलेशन इसका क्या है, ये नेगेटिव है. ठीक है, यहाँ पे आगे जाओ तो इसका नो कोरिलेशन, राइट. इंक्रीज डिक्रीज कोई डिफाइन नहीं है. न्यूज़पेपर सेल्स से टेम्परेचर, टेम्परेचर का न्यूज़पेपर सेल से क्या लेना देना है, राइट. यहाँ पे प्राइस ऑफ द पेयर्स, जितना हाई प्राइस उतने कम सेल हो गए. और क्वालिटी सोल्ड, क्वांटिटी सोल्ड, राइट. तो जितना हाई प्राइस होगा कम सेल होगा, जितना लो प्राइस होगा ज्यादा सेल होगा, करेक्ट. इट इज द नेगेटिव वेरिएशन, राइट. ठीक है, दिस इज कॉल्ड ए स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव. अपने को स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव अपने को कुछ नहीं लेगा. दिस शोज इट इज पॉजिटिव, वन गोइंग अप, सेकंड क्वांटिटी ऑल्सो गोइंग अप, पॉजिटिव. ये वीक पॉजिटिव है, अपने को वीक पॉजिटिव लेना नहीं. ये स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव है, राइट. अपने को सिर्फ ये देखना है कि यहाँ से नेगेटिव, यहाँ से पॉजिटिव ऐसे जाता है कि नहीं जाता है, करेक्ट है ना. ठीक है, क्लियर है. Yeah. चलो, यहाँ पे ये नो रिलेशन, ये भी नो रिलेशन, आइदर हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, एक्सेप्ट दिस और दिस, देयर इज नो रिलेशन, करेक्ट है ना. ठीक है. लाइन ऑफ बेस्ट फिट, इफ देयर इज रिलेशन, लाइन ऑफ बेस्ट फिट ये दिखाता है कि देयर हैज टू बी इक्वल डिस्टेंस बिटवीन द बोथ साइड्स पॉइंट. ये लाइन ऐसा बीच में जाना चाहिए, इधर से इसका डिस्टेंस और इधर से इसका डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए. इट इज समथिंग कॉल्ड एज लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑल्सो, जो तुम्हारे जीडीसी में कर सकता है, राइट. सो लाइन ऑफ बेस्ट फिट में वाई वी से वी हैव सर्टेन डेटा, सो इफ यू हैव समथिंग मिसिंग, इफ यू वांट टू ऑब्जर्व दैट कि क्या किया है, तो यहाँ पे ये मार्क लेके यहाँ पे चेक कर सकते हो कि इसका एस्टिमेशन जो होता है और डेटा का, तो तुम्हारे साथ आ सकता है, राइट. मैथ्स मार्क्स एंड फिजिक्स मार्क्स, किसी ने मैथ्स का दिया, फिजिक्स ने दिया, किसी ने फिजिक्स दिया, मैथ्स ने दिया. तो लाइन ऑफ बेस्ट फिट विल गिव यू एन आइडिया कि ये बच्चा अगर फिजिक्स के ऐसा है तो फिजिक्स मैथ रिलेटेड है, तो उसका मैथ्स के मार्क कितना आता है, मैथ्स का दिया तो फिजिक्स का मार्क कितना आता है, करेक्ट है. दिस विल गिव यू द लाइन ऑफ बेस्ट फिट, विल गिव यू एस्टिमेशन मार्क, राइट. क्लियर.
दैट्स इट। ठीक है, यूजुअली ये लोग पूछते हैं। अभी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। आई विल टेक इट ओनली व्हेन ऑल आर अवेलेबल, ठीक है ना? ठीक है, Yeah. तो ये मोस्ट प्रॉब्ली अभी उन लोग आना चाहिए, बिकॉज दिस इज गोइंग टू एंड अवर दिस थिंग। बस उसके बाद पाई चार्ट है, वो छोटा सा है, राइट? दैट्स इट। सो वी हैव वन मोर लेक्चर टू गो, और उसके बाद हम लाइव सॉल्व करेंगे उसको। लेट्स चेक। श्रेया, तेरा कब एग्जाम है बेटा? 20th. नहीं, हाउ मेनी डेज विल गो? 1 day only. मतलब अच्छा 18 से 23rd तक. 18 से 24, 1 वीक? 23rd. Yeah. ओके, ठीक है। एंड ध्रुव, व्हेन इज योर एग्जाम? यू हैव एग्जाम और यू डोंट हैव एन एग्जाम? Sir, I sent you the assessment date sheet now. कब भेजा है? Oh wait, I don't think I did. Let me send you right now. Mhm. Sir, but just to tell you, maths is on 8th June and maths plus is on 12th June. 12 जून? अच्छा। Yes. ओके, हाँ ठीक है, तब तक अपना पूरा काम वी वुड फिनिश एवरीथिंग। मतलब मेरा तो I वीक sent खत्म, the ये वीक में ही plan. खत्म हो जाएगा मेरा। आई विल फिनिश ऑल दिस विद इन दिस वीक ओनली। हाँ, आया। हम्म। डेट फ्राइडे, रिपोर्टिंग टाइम 8:10 AM। सेटअप रिहर्सल यूई। म्यूजिक, अच्छा म्यूजिक का है। 8 जून इंग्लिश, 9 जून ज्योग्राफी, दिसिंग, 10 जून, 11 जून फर्स्ट लैंग्वेज, मैथ प्लस विदाउट कैलकुलेटर। फ्राइडे को है 12 जून। Yeah. फिर And then I don't have any tests after that. नहीं Then तो 2 weeks इसका BM. किधर है? दूसरा किधर है? ये तो विदाउट कैलकुलेटर है ना, नो कैलकुलेटर। विद कैलकुलेटर का किधर है? I don't think I have a test which is with अच्छा, एक मिनट calculator. एक मिनट रुको। अच्छा, दो एग्जाम एक साथ? वन डे, No. अच्छा है ना, ये GDC रिक्वायर्ड है ना? 12:45 को है ना, 8 को है, 12 को है, राइट? No, that's for mathematics, normal mathematics. तो नॉर्मल मैथमेटिक्स ने, मेरा तो नॉर्मल मैथमेटिक्स ही Yeah, खत्म हो yeah, रहा है। yeah. For GDC required, yeah. हाँ, GDC रिक्वायर्ड। सो एक है 8 को और एक है तेरा 12 को, Yeah, मंडे एंड फ्राइडे, करेक्ट? yeah. हाँ ठीक है। सो 12:45 से है 130 आवर्स, और ये 1 आवर एंड 30 मिनट्स, तो ये कम है तेरा। अच्छा हाँ, बिकॉज योर पेपर 6 ऑल्सो। पेपर 6 किधर है तेरा? पेपर 6 तूने दिया ही नहीं इसमें। हिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस इज पेपर 2, पेपर 4, वेर इज पेपर 6? What is paper two, paper four? अरे बेटा, जो तुम्हारा ये, तेरे को ये आइडिया नहीं, तेरे को कैसे देगा? 0607 GDC रिक्वायर्ड, यू डोंट नो वैसे व्हाट नहीं काइंड देते ऑफ? until 10th grade, sir. हाँ, वैसे नहीं देते until 10th grade. अरे तो 10th ग्रेड में तो आ ही गया तू। अब क्या नहीं बाकी है सर. तेरा? एक साल में तेरा बोर्ड आएगा। सर नहीं, ऐसे नहीं होता सर. सी, Ninth दिस विल grade बी they'll give. 75 मार्क्स। दिस विल बी 75 मार्क्स, राइट? Sir, I don't know about marks, but ऐसे नहीं है sir. Ninth grade में they take questions from IGCSE papers related to what we've done in ninth grade. When we finish 10th grade, at that point they'll give the entire 007 and whatever अच्छा, paper there is. so it will be only अभी नहीं, 70, they this won't. will this will अभी be तो they 75 won't. marks. This will be Hmm? 75 marks, right? It's Because 10 तो it's वही सजेस्ट 60. करता It's है। 60 to 65 marks. It's never over that. तो फिर ये टाइम कम कहाँ, टाइम ज्यादा दे रहा है तेरे को? एज अ दिस थिंग, वन एंड So I हाफ। can give you a example paper for math and math. I will भेजो give ना, you फिर तेरे 50. पास रख के क्या कर रहा है तू? No, I just got it yesterday. तो भेज दो, पहले सबसे पहले करने का आया तो पहले मेरे को भेज दो। Okay, फर्स्ट थिंग sir. व्हाट यू शुड डू इज सेंड इट टू मी, फॉरगेट अबाउट आफ्टर लुकिंग एट दिस। Okay, sir. I'll ठीक है, send you. ओके, चलो, ठीक है। सो विल फिनिश नेक्स्ट क्लास, अगर ये आया तो विल फिनिश दिस चैप्टर एंड देन विल डू लाइव सॉल्विंग, राइट? Okay, ठीक sir. है, चलो, सी बाय Thank ऑन you, मंडे sir. फ्राइडे। चलो बाय। Bye, sir.